Last lecture, we discussed a beam and it was loaded by a sinusoidal load, a distributed load, and the expression for this load is given as W is equals to W naught sin pi x by L. And this beam was supported, simply supported at two supports such that this distance is A and this distance is also A. And total length of the beam is L. And the question was A is equals to how much such that bending moment at midpoint is equals to 0. So what we did, we first of all we took the beam and this is the distributed force and this is the reactions are RA and RB, and we obtained that RA plus RB is equals to integration of W naught sin pi x by L from x is equals to 0 to L, and from the moment balance we obtained that RA is equals to RB, and finally we got RB is equals to W naught L by pi. Then we made the cross section at the midpoint and separated out the beam. We said this is V and this is MB, and this was the distributed force and this was the reaction RA, and expression for MB was coming out to be W naught L by pi L by 2 minus A minus W naught L square by pi square, which is equals to 0, and this gave us A is equals to L by 2 minus L by pi. Okay, after this we talked about a new topic we did start in the last class, so which is geometry of deformation of symmetric beam subjected to pure bending. So as the name suggests, what is the meaning of pure bending? We said that if we draw the bending moment diagram, and this is the bending moment, either plus or bending moment diagram negative, then this particular beam is said to be subjected under pure bending moment. And we took the examples of pure bending. What would be the examples of pure bending? So we said that if there is some beam at the two ends, if moment M is applied, then at any cross section X,
This should be the shear force, this should be the MB, and on this end M is applied. So this imply net forces in x direction is equals to 0, which imply V is equals to 0, and similarly net moment about say point O is equals to 0. This imply M plus MV is equals to 0. This imply MV is equals to 0, which means MV at x is equals to 0. So this is valid for x is equals to 0 to for x is equals to 0 to x is equals to L, यानी पूरी लेंथ पर बेंडिंग मोमेंट जो है वो कांस्टेंट है. तो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ प्योर बेंडिंग केस. अनदर एग्जांपल इज हेलो सर, इसमें बेंडिंग मोमेंट तो m के इक्वल होगा ना? योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट. सर, इसमें बेंडिंग मोमेंट m के इक्वल होगा ना, शियर फोर्स 0 होगा. हाँ, शेयर फोर्स 0 होगा और बेंडिंग मोमेंट. सॉरी, यस यस यस, थैंक यू. एम. Thank you. So this is a case of pure bending. Another example is a case, a beam which is supported at 2 points A and B, and it is loaded by force P over here, and these distance are A and A. So in this case, for this is the region length under pure bending. If you draw the free body diagram and then evaluate the bending moment, then you will find out that the shear force in this region is 0, and in whole region V is equals to 0, and M is equals to MB is equals to constant. Okay. So in this problem we are going to consider a case of pure bending and a case of, so number 1 is pure bending, number 2 is cross section of beam is symmetric, which is called symmetry. So if so what we are going to consider is something like this.
तो ये जो बीम आपको दिख रही है, ये जो इसका मिड प्लेन है, इसके अबाउट this is x, and this is y, this is z. So this plane, ये जो प्लेन है, that is z is equals to 0 plane, is called plane of symmetry. Also plane of लोडिंग। इस बीम पर जो भी लोड है वो y डायरेक्शन में है, और प्लेन ऑफ लोडिंग जो है वो z इज इक्वल टू जी प्लेन, जो लोड होंगे वो सारे के सारे एक्स वाई प्लेन में होंगे। z इज इक्वल टू 0 प्लेन ऑल्सो एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के अबाउट जो क्रॉस सेक्शन होगा उसका, वो सिमेट्रिक होगा। यानी ये जो मिड प्लेन है, इसको क्रॉस सेक्शन को अगर इस तरफ से देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। करेक्ट, अगर ये इस तरफ से देखें तो वो यहाँ ऐसा दिखेगा। So this line will be a line of symmetry about which the cross section can be fold। तो सेकेंड पॉइंट का मतलब हो गया क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज सिमेट्रिक, कि ऐसा क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ऐसा क्रॉस सेक्शन होता है। जस्ट होल्ड फॉर 2 मिनट्स।
ओके, तो बीम का जो क्रॉस सेक्शन होगा, जिस बीम की हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, वो बीम की एनालिसिस हम ऐसी बीम की करने जा रहे हैं जो कि, या उस बीम के बारे में सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं जो कि सिमेट्रिक है, प्लेन ऑफ लोडिंग के अबाउट ये सिमेट्रिक है, यानी इस तरह से। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आपने गर्डर्स देखे होंगे, उनका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, आर यू एबल टू विजुअलाइज दिस? यस सर। तो इस तरह का कुछ क्रॉस सेक्शन हो सकता है, या फिर सिंपली रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन हो सकता है। तो हम सिर्फ उन बीम्स की बात करेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक हो, ऐसा शेप हो सकता है, ऐसा शेप हो सकता है, या और भी कोई शेप। लेकिन एल शेप के भी बीम्स होते हैं, उनकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। तो हम सिर्फ उन बीम्स की बात कर रहे हैं विच हैज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड इट इज लोडेड इन द प्लेन ऑफ सिमेट्री। Okay, and what are the other conditions for which we are studying? The third point is cross section is uniform throughout the length. यानी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे, मतलब सपोज अगर एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम है,
तो ऐसा नहीं है कि एक जगह पे इस तरह की बीम नहीं है, बल्कि अगर क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है तो सेम क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ है। Okay, so this one is not allowed and this one is allowed. Allowed means हम इसकी बात कर रहे हैं, दूसरे केस की बात नहीं कर रहे हैं। Material properties are constant along the length। यानी कोई ऐसी बीम नहीं है कि अगर ये सपोज बीम है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि इस पूरे पोर्शन को, तो हमने कहा कि ये स्टील है और इस पूरे पोर्शन को हमने कह दिया कि ये वुड है। ओके, सो दिस इज नॉट अलाउड। मतलब पूरी लेंथ पर एक सेम मटेरियल होगा। हम ऐसी बीम की एनालिसिस करने जा रहे हैं या उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं फर्दर। मटेरियल प्रॉपर्टीज आर सिमेट्रिक with respect to plane of लोडिंग। यानी अगर ये बीम है ओके, दिस वन इज wood
and this one is स्टील। तो ये एक बीम है जो कि दो मटेरियल से बनी हुई है। तो इस और अगर प्लेन ऑफ लोडिंग मतलब सपोज ये वाला एक्स डायरेक्शन है, if this is x direction and this is y direction and this is z direction, अगर ये है केस और एक्स वाई प्लेन में लोडिंग है तो फिर ये अलाउड नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अलाउड, यानी ये इसमें मटेरियल जो है एक्स वाई प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। लेकिन अगर इसी को आप दूसरे तरीके से टिल्ट कर दें, यानी इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दें, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। सो दिस वन इज अलाउड क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अबाउट मटेरियल क्या है, सिमेट्रिक है। ये इस तरफ स्टील है रेड वाला और ऑरेंज वाला वुड है। अगर इस तरह का कोई बीम है तो देन दिस इज अलाउड। ये चीज समझ में आई? Yes, sir. Okay, so these are the different conditions under which we are going to study the bending of beam and how the beam will deform. But before proceeding further, let me clarify the concept of curvature. Curvature से क्या समझते हैं आप लोग? Anyone? Have you ever studied curvature? Anything which has radius. Anything which has radius, yes, curvature is associated to radius. So one thing is curvature and one thing is radius of curvature. So can anyone help me out? What is the relation between, my screen is visible to you? No, sir. No, sir. Okay. Now it is, right? Okay. Yes, sir. So suppose there is a curve. Let me draw a curve. Yes.
So here it is a curve. Let me say this point as A. Let me take another point as B. Okay. So B पे हम इस पॉइंट के अबाउट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, करेक्ट? कैन वी ड्रॉ टेंजेंट एट पॉइंट P? Yes. So this is a tangent to point B, which is making an angle of phi. ठीक है, एक कर्व है जिसका नाम है कर्व ए डी। इस कर्व के बीच में एक पॉइंट हमने लिया बी और उस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन से एक एंगल फाई बना रही है। ठीक है, इट इज एट एन एंगल ऑफ फाई विद हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर हम बी पॉइंट से थोड़ी सी दूरी पर एक और पॉइंट लेते हैं सी, और सी पे ओके, सो सी पे हमने फिर से टेंजेंट ड्रॉ किया और ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम कह रहे हैं फाई प्लस डेल्टा फाई। ओके, कैन समवन tell me what is this angle? बताइए। नहीं समझ में आ रहा? हमने ये जो येलो लाइन है, ये जो येलो लाइन है इसको हमने यहां तक एक्सटेंड कर दिया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये एंगल कितना होगा? Sir, I think half of 5 plus del phi. देखिए, एक सेकेंड, लेट मी रीडू दिस। अब इसको हटा दीजिए। ये एंगल कितना है? फाइव प्लस डेल्टा फाइव, करेक्ट? यस सर। और ये एंगल कितना है? फाइव
फाइव। तो अब बताइए ये एंगल कितना होगा? डेल फाइव। डेल्टा फाइव, करेक्ट। सो दिस एंगल इज डेल्टा फाइव। कंफ्यूजन है या फिर से एक्सप्लेन करूं या ठीक है? क्लियर है। ओके। ओके, अब हम क्या करेंगे, बी पर हमने परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी। किसके परपेंडिकुलर? जो टेंजेंट है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ करी। और ऐसे ही इस पॉइंट का हम नाम देते हैं सी, है ना। दिस इज अ सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पर भी हमने वही काम किया, एक लाइन ड्रॉ करी। ओके, ओके। तो बी पॉइंट पर हमने जो टेंजेंट है येलो कलर का, येलो कलर इज दिस, रिप्रेजेंट tangent. This is also tangent. ओके। अब बी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर हमने मैजेंटा कलर का ड्रॉ किया है, इसको हम नाम दे रहे हैं से ओ बी। और सी पॉइंट पे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है वो ओ बी को ओ प्राइम पॉइंट पर कट करता है। ठीक है। अब हम क्या करें, अगर हम सी पॉइंट को करीब लाना शुरू करें, करीब लाने से क्या मतलब है कि हम सी को यहां ले आए, सी, फिर यहां C1, C2, फिर यहां लाए C3। तो C अप्रोचिंग टू B। तो O प्राइम किस तरफ जाएगा? जो कटिंग पॉइंट है वो कहाँ, किस तरफ मूव होगा? अपवर्ड। अपवर्ड, राइट। तो ये कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। इसको हम नाम देते हैं O प्राइम वन, फिर O प्राइम टू एंड O प्राइम थ्री। तो जब ये बहुत करीब आ जाएगा, सी एकदम बी के पास आ जाएगा, बहुत ही करीब आ जाएगा, तो ये ओ प्राइम जो है वो ओ की तरफ अप्रोच करेगा। दिस विल इम्प्लाई ओ प्राइम विल अप्रोच टू ओ। अच्छा, ओ क्या है हमें नहीं पता, राइट। अभी हमने ओ दिखा रखा है, ओ पॉइंट की लोकेशन हमें नहीं पता है। लेकिन जब बी और सी दो जगहों पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और सी को फिर करीब करना शुरू करेंगे, तो वो किसी पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा, जहां पे जाके स्टैग्नेट हो जाएगा, यानी वहां पे रुक जाएगा। उस पॉइंट को हम कह रहे हैं वो ओ पॉइंट है। और ओ बी लेंथ को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओ बी विल बी कॉल्ड
रेडियस ऑफ कर्वेचर। So let me redefine curvature। ये चीज समझ में आई? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? अगर कोई भी आपको कर्व दिया हो, सपोज आपको एक कर्व किसी ने यूं दिया, ठीक है, और कहा कि इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, इस ए पॉइंट पर, तो आप क्या करेंगे? यानी अगर ज्योमेट्रिकली आपको फाइंड आउट करना हो तो व्हाट विल यू डू? आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये जहां पे कट करेगा उस पॉइंट को मार्क करेंगे, फिर इससे और पास में एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जिस पॉइंट पर जब ये पास पॉइंट होता चला जाए तो खुद ही आपको ज्योमेट्रिकली ऐसा लगेगा कि अब इससे करीब कोई पॉइंट नहीं ले सकते, तो वो जहां कट कर रहा है उस डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे और आप कहेंगे कि ओके दिस वन इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, कर्वेचर ऑफ प्लेन कर्व। ये हम क्यों बात कर रहे हैं प्लेन कर्व की? क्योंकि थ्री डायमेंशनल कर्व के बारे में स्लोप जो है वो कई डायरेक्शन में चेंज होगा, तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और बीम भी जो है हम इसीलिए बीम का डिफॉर्मेशन इन 2D देख रहे हैं ना, एक्स वाई प्लेन में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है सिर्फ हम उसको कंसीडर कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल बीम की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए कर्व की भी बात करेंगे तो कर्व इन 2D की बात करेंगे, तो इसीलिए कर्वेचर ऑफ प्लेन कर्व मतलब कर्व इन अ 2 डायमेंशनल स्पेस। So this is defined as rate of change of slope of curve with respect to distance along the curve। यानी किसी कर्व का स्लोप उसके स्लोप कर्व की लेंथ के डायरेक्शन में कितना तेजी से चेंज हो रहा है उसी को हम कहते हैं कर्वेचर। यहां पे स्लोप क्या है? बी पॉइंट पर स्लोप क्या है? एंगल कितना है बी पॉइंट पर? फाइव। 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 और सी पॉइंट पर? 5 + del 5। तो बी से सी पॉइंट तक जाने में एंगल में चेंज कितना है? del 5। तो ये del phi डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ बी सी। ठीक है, बी से सी तक जो कर्व की लेंथ है उसकी लेंथ से अगर डिवाइड करेंगे इन द लिमिट इक्वल्स टू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय बी सी लेंथ, और इन द लिमिट बी सी अप्रोचेस टू जीरो। यानी जो कर्वेचर है ये ऐसा नहीं है कि आपने एक ऐसा कर्व है इस पॉइंट पे आपको निकालना हो कर्वेचर, तो आप यहां से लेके इस पॉइंट तक की लेंथ ले लें और इस एंगल को, ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा फाई ले लें,
और ये लेंथ एक फाइनाइट लेंथ है। फाइनाइट लेंथ मतलब जिसको आप देख सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, काफी बड़ी लेंथ है, और फिर उसको कहें कि डेल्टा फाइव बाई बी सी विल बी कर्वेचर, नो। इसके लिए ये जरूरी है कि पॉइंट बी सी के करीब हो। बात समझ में आई? यस यानी सर। बी से सी की दूरी बहुत पास में होगी, तब डेल्टा फाइव बाई बी सी जो है बी पॉइंट पर हमें कर्वेचर देगा। एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगर सी बी के बहुत पास है, बहुत करीब है, तो बीसी को आप, ये एंगल कितना है बताइए? अच्छा देखिए, दो दो येलो लाइंस आपको दिख रही हैं, दो टेंजेंट दिख रहे हैं, राइट? इन दोनों टेंजेंट के बीच में कितना एंगल है? ये डेल फाइव। डेल्टा फाइव, डेल नहीं, डेल्टा फाइव है ना? तो इन दो लाइंस पे परपेंडिकुलर जो लाइंस हैं, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है इसके, करेक्ट? तो इनके जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके बीच में कितना एंगल होगा? नहीं, देखिए, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और इनके परपेंडिकुलर, एक इसके परपेंडिकुलर और दूसरी इसके परपेंडिकुलर, यानी ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल कितना होगा? फाइव होगा सर। फाई फाइव होगा, होगा। राइट? तो ये, हाँ, सो दिस एंगल विल बी डेल्टा फाई, करेक्ट? यस सर। तो अगर ये एंगल डेल्टा फाई है और सी बी के बहुत पास में है, तो बीसी लेंथ को हम ये मान सकते हैं कि ये एक सर्किल पर है। अगर सी बहुत पास में होगा बी के, तो डेल्टा फाइव भी बहुत छोटी वैल्यू होगी, बहुत छोटा एंगल होगा। मतलब ये ऐसा है, सपोज ये, सर टाइम हो गया है। ओके, जस्ट लेट मी फिनिश दिस वन। ये एक लाइन है, ऐसी एक लाइन ये है, ठीक है? तो इस डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हैं? ये आर डिस्टेंस है, ये एंगल फाई है, तो इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? आर टाइम्स ये डेल्टा फाई, आर टाइम्स डेल्टा फाई कह सकते हैं। इसको एक सर्किल से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, मतलब इसको बहुत बड़े सर्किल का पार्ट मान सकते हैं आप, और इस डिस्टेंस को आर टाइम्स डेल्टा फाई से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इन द कंडीशन कि सी इज वेरी नियर टू बी। सो दिस विल बी लिमिट बी सी अप्रोचेज जीरो, या फिर लिख सकते हैं डेल्टा फाई अप्रोचेज जीरो, इनमें से जो भी चाहे आप लिख सकते हैं लिमिट में। और ये डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई बी सी को क्या लिखेंगे? यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लेंगे? ओ टाइम ओ से बी, या ओ प्राइम सी, कुछ भी ले सकते हैं, यानी ओ से बी तक लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं डेल्टा फाइव बाई ओ प्राइम से लेके सी तक, एन टाइम्स डेल्टा फाइव। आर टाइम्स डेल्टा फाइव हम ये लिख रहे हैं ना? सो दिस विल बी लिमिट बी सी अप्रोचेस जीरो, या ओ प्राइम सी अप्रोचेस ओ टाइम्स बी, लिमिट ये होगी, और डेल्टा फाइव ये हो जाएगा वन बाई ओ प्राइम सी, विच विल बी इक्वल टू वन बाई ओ बी।
और इसको हम कहेंगे 1/रो ओ बी इज इक्वस टू रो इज इक्वस टू रेडियस ऑफ curvature. Okay, we will continue from here on Monday. Let's stop here.